नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। कितने राफ़ेल तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए या मार गिराए गए? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का वज़ीर आज़म से सवाल। एक मोटरसाइकिल सवार को अचानक पड़े दौरे, जहां सीतक्का ने इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए फौरी अपनी गाड़ी रोककर मुतासरा शख्स की मदद। गौरवली प्रोजेक्ट के जरिए इस पूरे इलाके को ज़रूरी पैदावार से सरसब्ज़ व शादाब बनाया जाएगा, वज़ीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, बल्कि मैंने BRS को बचाने के लिए ख़त लिखा था, के कविता का बयान। GHMC कमिश्नर और वाटर वर्क्स के MD ने आज रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा याकुतपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना। हैदराबाद में साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शहर के 7 जोन्स में साइबर सेल्स का किया इफ्तिताह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से 1 जून को दोपहर 2 बजे तक 5 बजे धरना चौक पर वक्फ बिल के खिलाफ मुनक़िद किया जा रहा है एहतजाज। शिरकत की आवाम से की गई अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जय हिंद सभा में वज़ीर आज़म मोदी और BJP पर सख्त तनकीद की। उन्होंने राफ़ेल मामले को घोटाला करार देते हुए सवाल उठाया कि कितने राफ़ेल तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए या मार गिराए गए। उन्होंने कहा कि मोदी एक मनसूख शुदा 1000 नोट की तरह बेकार हो चुके हैं। अगर राहुल गांधी वज़ीर आज़म होते तो आज POK भारत का हिस्सा होता। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP ने जंग को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि फ़ौज की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया। उन्होंने चीन की दरअंदाजी और कर्नल संतोष बाबू की शहादत पर मोदी की खामोशी को कौमी क़ियादत की कमज़ोरी करार दिया। उनका कहना था कि कांग्रेस ने हमेशा फ़ौज के साथ खड़े होकर हकीकी हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। कहा BJP को शहीदों की कुर्बानियों को सियासत का ज़रिया नहीं बनाने देंगे। ఎన్నికల కోసం కాదు, ఈ ర్యాలీ ఓట్ల కోసం కాదు, ఈ ర్యాలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కాదు, ఈ ర్యాలీ వేలాది మంది తరలి వచ్చింది ఈ దేశ సైనికుల యొక్క ఆత్మస్థైర్యాన్ని నిలబెట్టడానికి, ఆత్మ గౌరవాన్ని పెంపొందించడానికి. మన యుద్ధంలో పాల్గొన్న సైనికులు మా వాళ్ళు, మా ఆత్మ గౌరవం సైనికులకు మేము అండగా నిలబడ్డామని ఇవాళ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు ప్రాంతంలో వేలాది మంది కదం దొక్కింది. సైనికులకు అండగా నిలబడడానికి, యుద్ధాన్ని విరమించడం ద్వారా సైనికుల ఆత్మ గౌరవాన్ని, ఆత్మస్థైర్యాన్ని BJP దెబ్బతీస్తే ఆ సైనికులకు అండగా నిలబడడానికి ఇవాళ వేలాదిగా మనము ఈరోజు బయటకు వచ్చి సైనికులకు అండగా నిలబడ్డాం. అందుకే ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి ఎన్నికలు కాదు, దేశ భద్రత వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశ భద్రతకు నిలబడుతుంది. ఆడొకటి ఈడొకటి తలమాసినోడు కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది అని అంటాడు. కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది? దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చింది. కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది? మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ దేశం కోసం నేల కొరిగిండు. కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది? ఈ దేశం కోసం ఇందిరాగాంధీ ప్రాణ త్యాగం చేసింది, ఈ తీవ్రవాదుల చేతుల్లో ప్రాణాలు అర్పించింది. కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది? రాజీవ్ గాంధీ దేశాన్ని రక్షించడంలో ఈ దేశం కోసం సర్వం త్యాగం చేశారు. మోతీలాల్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేయడమే కాదు, నెహ్రూ 10 సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు జైల్లో పెట్టినరు. వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఆనాడు దేశం కోసం సర్వం అంకితం చేశారు. ఇవాళ 75 సంవత్సరాల తర్వాత కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండల్లో, మంచు కొండల్లో పేద ప్రజల కోసం పాదయాత్ర చేసిన రాహుల్ గాంధీ ఈ దేశానికి నాయకత్వం ఇచ్చడానికి 75 ఏళ్ల తర్వాత సొంత ఇల్లు లేని నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అనంటే మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు. ఇది కాంగ్రెస్ ఈ దేశం కోసం చేసిన త్యాగం అని చెప్పి నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నా. అందుకే మిత్రులారా, ఇక మోడీ కాలం చెల్లిన రూపాయి, మోడీ రద్దయిపోయిన 1000 రూపాయల నోటు లాంటోడు ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ఈ దేశానికి అవసరం ఉన్నది. రాహుల్ గాంధీ లాంటి నాయకుడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఉండుంటే ఇందిరాగాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకొని అపరకాలి ఆదర్శ మార్గంలో నడిచి పాకిస్తాన్ 2 ముక్కలు చేసి పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ని హిందుస్థాన్లో చేర్పించుండేవాడు రాహుల్ గాంధీ లాంటి వాడు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలి.
ఇక్కడున్న మనం అందరం ఈ వేదిక మీద నుంచి ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా రాహుల్ గాంధీ గారిని గెలిపించాలి. అప్పుడే ఈ దేశం యొక్క రక్షణ కాపాడుతుంది, ఈ దేశానికి మేలు జరుగుతుంది. అందుకే మిత్రులారా, ఈడున్న వాళ్ళందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఒక్కటే, ప్రధానమంత్రి మోడీ వల్ల దేశ గౌరవం నిలబడదు, ఈ దేశాన్ని యుద్ధంలో గెలిపించడు. ఇందిరాగాంధీ గారి మనవడైన రాహుల్ గాంధీ ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలి. వారు ప్రధానమంత్రి అయితేనే ఒక పక్కన పాకిస్తాన్, ఇంకొక పక్కన చైనాను యుద్ధంలో ఓడించి భారతీయుల ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టాడు. ఈ దేశానికి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేసే వరకు మన అందరం పోరాటం చెయ్యాలి, మన అందరం కష్టపడాలి. మీరందరు సిద్ధమా? 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 शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा फ्लाईओवर पर एक मोटरसाइकिल सवार को दौरे पड़े, जहां वजीर सी तक्का ने इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए फौरी तौर पर अपनी गाड़ी रोकी और मुतासरा शख्स की मदद के लिए आगे आई। उन्होंने मुतासरा शख्स के हाथ में चाबियां रखकर इसे पुरसुकून करने की कोशिश की और इसके मुकम्मल तौर पर संभलने तक वहीं मौजूद रही। बाद में इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि गौरा वैली प्रोजेक्ट के ज़रिए इस पूरे इलाके को ज़रूरी पैदावार से सरसब्द व शादाब बनाया जाएगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वो प्रोजेक्ट की नहरें जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि किसानों को बर वक्त पानी मैसर हो। उन्होंने कहा कि गौरा वैली प्रोजेक्ट के लिए वो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही हर गाँव तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे ताकि पिछड़े इलाकों में खेती बाड़ी को फ़रोग़ मिले और किसानों की ज़िंदगी मैसर हो। ఈ గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టులు కూడా తాపకూరు వారు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. కలెక్టర్ గారు దాని కొరకు ఎంత శ్రమ పడాలో అంత శ్రమ పడతానా, నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఇచ్చే బాధ్యత నాది. గౌరవెల్లి ప్రతి కాలువ తవ్వి నీళ్లు ఊరుగా తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంతం అంతా సస్యశామలం చేసే ఆలోచనతో ఉన్నామని ఆ మాట కూడా దాని కొరకు ఎంత శ్రమ పడుతున్నానో నాకు తెలుసు, భగవంతుడు తెలుసు. అంత కష్టపడుతున్నా తప్పకుండా గౌరవెల్లి నీళ్లు తీసుకొచ్చే విధంగా ఆ యొక్క కష్టాన్ని మీ అందరికీ ఈ ప్రాంతానికి నీళ్లు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా నాదైన మాటని సందర్భంగా మనం చెప్తాం. BRS MLC के कविता ने कहा कि इनका ज़ाती कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने BRS को बचाने के लिए ख़त लिखा था कि कविता ने वाज़ेह किया कि BRS को BJP के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए क्योंकि माजी में किसी को इससे फ़ायदा नहीं हुआ। कविता ने कहा कि अगर कोई KCR को निशाना बनाएगा तो वो खामोश नहीं रहेंगे और ख़त सिर्फ पार्टी के मफाद में लिखा गया था। कविता ने सवाल किया कि जब कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में KCR को नोटिस से आई तो सीनियर लीडर्स ने खामोशी क्यों इख्तियार की। उन्होंने कहा कि वो जब जेल में थी पार्टी को BJP में जम करने की बातें कही गई जिसे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। कविता ने मंशियाल में मरहूम सहाफ़ी मुनीर के अहल खाना से मुलाकात करके इन्हें ताज़ियत पेश की और मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। GHMC कमिश्नर कर्नल और वाटर वर्क्स के MD अशोक रेड्डी ने आज रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा याकुतपुर हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। मुआयने का मकसद नालों और सीवरेज के पानी के उबलने के मसाइल का जायज़ा लेना था। ख़ास तौर पर रंगीली खिड़की, मौला का छिल्ला और गंगानगर नाले जैसे मुकामात पर तवज्जो दी गई। मुहर्रम के जुलूसों के रास्तों और आरशुखानों की देखभाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। GHMC कमिश्नर ने फौरी मंजूरी की यकीन दहानी करवाते हुए तजावीज़ तलब किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और दीगर भी मौजूद थे। याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह 7 बजे एक दौरा स्टार्ट किया गया जिसमें GHMC कमिश्नर, MD वाटर वर्क्स और GHMC का तमाम महकमा, उसके अलावा वाटर वर्क्स का पूरा महकमा आज का दौरा कमिश्नर और MD वाटर वर्क्स को दोनों को लेकर दौरा करने का मेन मकसद ये था कि यहाँ के जो याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाले के और सीवरेज के एक दूसरे से इंटरलिंक है, जिसके लिए ओवरफ्लो होता, जब भी बारिश आती है काफ़ी परेशानी होती है। हमने लाकर पूरा मौला के छिल्ले का दौरा कराया और उसके साथ साथ गंगानगर का नाले का पूरा दौरा कराया। दौरा कराने के बाद में MD वाटर वर्क्स और GHMC कमिश्नर ने तकरीबन एक सीवरेज और SW ड्रेन के मेनहोल्स भी खोल कर देखे। उन्होंने खुद मुतमईन हुए कि वाकई यहाँ पर प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी नाले याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो नालों के
प्रपोजल्स के लिए कहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम लोग 2-3 दिन के अंदर ये प्रपोजल्स उनको भिजाएंगे, ताकि यहाँ पर स्पेशली जो घरों के नीचे से रंगीली खिड़की के पास में या मौला के चिल्ले के सामने रहमानिया के पास में जो नाला घर के नीचे से ओवरफ्लो हो रहा है, उसको डाइवर्शन करते हुए बॉक्स ड्रेन बनाने का डीपीआर भी बन गया है, और डीपीआर के हिसाब से ये बॉक्स ड्रेन का भी सैंक्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ कमिश्नर साहब को, मेरे साथ में रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी साहब थे, कि मोहरम की रूट के बारे में भी हमने बात किया कि मोहरम का अगर सैंक्शन इमीडिएट दे देंगे जहाँ से रोड गुजर रही है, और अप्रोच रोड जो होते हैं आशुर खाने के लिए, और जो आशुर खानों का भी जो मेंटेनेंस है उसके लिए कमिश्नर साहब ने कहा एमएलसी साहब को इमीडिएट आप प्रपोजल्स ला लीजिए और सैंक्शन दे देंगे, ताकि काम जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए मोहरम का। तो ये तमाम के तमाम कामों को कराने के लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का खास इंस्ट्रक्शन था, और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भी खास तवज्जो और दिलचस्पी की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आए दिन न सिर्फ ऑफिसरों के साथ दौरे कर रही है, उस काम को मुकम्मल कराने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ में रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी साहब, और जनाब सुहेल खादरी साहब, जनाब अलमदार वालेजाई साहब, जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, जनाब शफाहत साहब, नसरीन मैडम, समीना मैडम, वासिफुद्दीन साहब, और तमाम के तमाम आज के दौरे में मौजूद थे। जनाब शफाहत साहब, नुमाइंदा कारपेटर कुरमागुड़ा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मौजूद थे। जो हम कमिश्नर की नॉलेज में लाए हैं और एमडी वाटर वर्क्स की नॉलेज में लाए हैं, तो सबका उन्होंने तयखुन दिए है कि इमीडिएट सैंक्शन करा के काम करने का। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर ये काम पूरे तकमील होंगे। नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की खास निगरानी के अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने वर्क सैंक्शन हुए वो काम को हम इमीडिएट टेकअप कर रहे हैं। जो सैंक्शन होने का है उसके लिए हम प्रपोजल लिख जाके सैंक्शन लेके आएंगे। मैं आज के दौरे के अंदर हमारे कारपेटर्स और हमारे एक्टिव वर्कर, सदर मोतमदीन, जितने लोग भी आज के दौरे में मौजूद थे, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम परसल्ला बोर्ड की जानिब से 1 जून इतवार के रोज़ दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे इंदिरा पार्क, धरना चौक, हैदराबाद में वक्फ बिल के ख़िलाफ़ एक मुत्तहिदा एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। इस एहतजाज में हैदराबाद व तेलंगाना की मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और जमातों के ज़िम्मेदारान शरीक होंगे। हैदराबाद में मुनाकिदा इजलास में फ़ैसला किया गया है कि इस प्रोग्राम का स्लोगन संडे इज़ वक्फ डे होगा, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम परसल्ला बोर्ड की सरपरस्ती में मुनाकिद किया जा रहा है। इजलास में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना डॉक्टर मतीन कादरी, मौलाना ज़ियाउद्दीन नैयर और दीगर मुमताज़ उलमा और समाजी क़ायदीन ने शिरकत की। मौलाना उमर आबिदीन ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि इस एहतजाज में मुस्लिम समाज के साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे, नौजवान, समाजी कारकुन और सेकुलर जमातों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अवाम से अपील की है कि वो इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम परसल्ला बोर्ड की तरफ से जो तेलंगाना के अरकान हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमों और जमातों के ज़िम्मेदारान के साथ आज एक मुशावरती नशिस्त मुनक़िद हुई, और इसमें 2 बातें तय की गई। सबसे पहली बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम परसल्ला बोर्ड की तरफ से एक मुत्तहदा प्रोटेस्ट 1 जून इतवार के दिन धरना चौक, लोअर टैंक बैंड पर मुनक़िद होने जा रहा है, दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान। और इस प्रोग्राम का जो स्लोगन है वो ये है कि संडे इज़ वक्फ डे। तो तमाम मुस्लिम तंजीमों का जो मुत्तहदा और मुश्तरका प्रोटेस्ट है वो इतवार के दिन है, दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। और आज इस मुशावरती नशिस्त में तेलंगाना के तमाम तकरीबन अरकान बोर्ड और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब जो अमीरुल जामिया हैं और पूरे रियासत और मुल्क के नामवर फ़क़ीह और आलिम दीन हैं, वो हमारी सरपरस्ती यहाँ फरमा रहे हैं। इसी तरीके से वो ऑल इंडिया मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के रुकन हैं, मोहतरम जनाब मौलाना डॉक्टर मतीन कादरी साहब हैं, वो परसल्ला बोर्ड के रुकन हैं। मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब हैं, वो परसल्ला बोर्ड के सीनियर रुकन हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली साहब तशरीफ़ रखते हैं, परसल्ला बोर्ड के मेंबर हैं। इसी तरीके से हज़रत मौलाना हैदर निसार आगा साहब तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत मौलाना मसूद मुश्तहिदी साहब हैं, और
जी, ये सब अरकान बोर्ड हैं। ख़वातीन में से मोहतरमा हफ्सा अख्तर साहबा यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान में मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब जमीयतुल उलमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कादरी चमन के मुमताज़ आलिम मौलाना डॉक्टर अली हुसैनी साहब मौजूद हैं। हज़रत मौलाना सईद अहमद कादरी साहब हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम से मोहतरम जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब हैं। इसी तरीके से जुबली हिल्स में ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के मुख्तलिफ़ इदारों के ज़िम्मेदार मौलाना मुफ्ती रफ़ीउद्दीन रशादी साहब हैं। तो गोया हैदराबाद और तेलंगाना के जितने मुमताज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। मेरे साथ में मोहतरम जनाब रफ़तुल्लाह शाहिद साहब हैं जो तबलीग जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोया ये एक मुत्तहदा और मुत्तफ़क़ अलैह प्रोटेस्ट है जो तमाम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है। बाज़ नौजवानों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहतरम जनाब मुश्ताक़ साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और ये कन्फ्यूजन जो पाया जा रहा है कि हफ्ते के दिन का प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है या नहीं है, तो इस सिलसिले में हम इन तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है वो 1 जून और संडे को है। हमारा स्लोगन है कि संडे इज़ वक्फ डे और इसी स्लोगन के तहत हम लोग ये प्रोटेस्ट मुनक़िद कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमें इस हवाले से बतानी है कि इस प्रोटेस्ट में उलमा, दानिशवरान, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल एक्टिविस्ट, उसके साथ साथ तमाम सेकुलर पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। मुसलमानों के साथ साथ जो अदर फेथ लीडर्स हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनकी भी नुमाइंदगी रहेगी। नीज़ ख़वातीन की एक बड़ी नुमाइंदगी है। तो तमाम नौजवान, मर्द व ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बूढ़े, तमाम के तमाम हजरात इस प्रोटेस्ट में शरीक हों। यही मैसेज है इस मुत्तहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सैबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT शमशाबाद और शादनगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। इस मंशियात की कीमत तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। मुलजिम विकास उम्र 25 साल जो एक ढाबे में काम कर रहा था को नेशनल हाईवे 44 पर संजू भाई माड़वाड़ी ढाबे के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके कब्ज़े से मुख्तलिफ मंशियात की अशिया जब्त की। जब्तशुदा सामान की कुल मालियत तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। బేసికలీ మన SOT శంషాబాద్ టీమ్ అండ్ షాద్నగర్ కలిసి మన రాయకల్ టోల్ ప్లాజా దాటి కొంచెం ముందు ఒక దాబా ఉంది. ఆ దాబాలో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కొన్ని రోజుల నుంచి దాని మీద వాచ్ చేస్తూ ఒక మంచి సీజర్ ఆఫ్ నార్కోటిక్స్ చేశారు. బేసికలీ ఆల్ మోస్ట్లీ ఆ గాంజా వదిలేసి మిగతా అన్ని పర్టెన్ టు ఓపియం ఫ్యామిలీ నార్కోటిక్స్. దాంట్లో 632 గ్రామ్స్ ఓపియం ఉంది, ఒక 1.5 kgs హెరోయిన్ మిక్స్ అయి ఉంది, అంటే ఈ పాపీ స్ట్రా పౌడర్తో మిక్స్ అయి ఉంది హెరోయిన్, అండ్ 2.8 kg పాపీ స్ట్రా దొరికింది. ఇంకా క్యాష్, వేయింగ్ మెషిన్, ఫోన్స్ అవన్నీ సీజ్ చేశారు. బేసికలీ అక్కడ ఒక కుక్గా పనిచేసే మనిషి రాజస్థాన్ నుంచి ఇవి తెచ్చి వాళ్ళకి తెలిసిన కస్టమర్స్కే అమ్ముతున్నాడు. ఓన్లీ ఆన్ నోన్, అంటే ముందు తెలిసి ఉంటేనే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే అమ్ముతున్నాడు. సో అలాంటి ఆయన ముందు ఒక అసోసియేట్ ఉన్నాడు, బట్ హీజ్ నో మోర్, ఈ పాస్డ్ అవే. సో ఆయన కూడా ముందు చేసేవాడు, ఇప్పుడు ఆయన కోసం చేస్తున్నాడు. కొందరు అసోసియేట్స్ ఉన్నారు హూ ఆర్ హెల్పింగ్ హిమ్ బ్రింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ అండ్ ఆల్. సో వాళ్ళకి కూడా వి విల్ ट्रेस आउट एंड दानि మీద కూడా వర్క్ నడుస్తుంది. शहर हैदराबाद के मधुरा नगर में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में जुमा के रोज़ अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग एयर कंडीशनर के कंप्रेसर फटने के बायस दूसरी मंजिल पर लगी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात जारी है।
तेलंगाना हुकूमत ने गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स 2024 के तहत 2014 से 2023 तक हर साल की 3 बेहतरीन फिल्मों का इंतखाब किया है। अवार्ड्स के फातिहीन की फहरिस्त ज्यूरी कमेटी चेयरमैन मुरली मोहन की क़ियादत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश की गई। इस मौके पर TFDC चेयरमैन दिल राजू, MD सुरेश और ED किशोर बाबू के अलावा दीगर मौजूद थे। 2014 సంవత్సరం అండి బెస్ట్ ఫిలిం రన్ రాజా రన్, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం పాఠశాల, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం అల్లుడు శ్రీను. అలాగే 2015 బెస్ట్ ఫిలిం, ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం రుద్రమదేవి, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం కంచె, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం శ్రీమంతుడు. 2016లో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం శతమానం భవతి, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం పెళ్లి చూపులు, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం జనతా గ్యారేజ్. అలాగే 2017లో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం బాహుబలి కంక్లూజన్, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం ఫిదా, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం గాజీ. అలాగే 2018లో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం మహానటి, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం రంగస్థలం, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం. 2019లో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం మహర్షి, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం జెర్సీ, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం మల్లేశం. అలాగే 2020లోకి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం అల వైకుంఠపురంలో, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం కలర్ ఫోటో, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్. 2021లో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం RRR, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం అఖండ, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం ఉప్పెన. 2022లో ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం సీతారామం, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం కార్తికేయ 2, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం మేజర్. 2023 ఫస్ట్ బెస్ట్ ఫిలిం బలగం, సెకండ్ బెస్ట్ ఫిలిం హనుమాన్, థర్డ్ బెస్ట్ ఫిలిం భగవంత్ కేసరి. స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డ్ ప్రజాకవి కాళోజీ. ఇవి సినిమాలకు సంబంధించిన అవార్డులు. ఇవి हैदराबाद में साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शहर के 7 जोन्स में साइबर सेल्स का इफ्तिताह किया। इन सेल्स का मकसद फौरी और मौसर कार्रवाई के ज़रिए शहरियों को साइबर जराइम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। आदद शुमार के मुताबिक 2015 में 331 साइबर क्राइम केसेस दर्ज हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 3111 तक पहुँच गए। इन 7 जोन्स में 61 अफसरान को तैनात किया गया है और ये सेल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर टेक्निकी मदद के तहत काम करेंगे। आज हैदराबाद सिटी पुलिस में जोनल साइबर क्राइम सेल्स का आविष्कार हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एक पुलिस स्टेशन है पूरे कमिश्नरेट के लिए, इतने बड़े शहर के लिए, सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, उसमें केवल 125 तक स्टाफ है, 10 इंस्पेक्टर, एक ACP, एक DCP और हज़ारों में संख्या में कंप्लेंट्स ये पुलिस स्टेशन में आ रही हैं। तो सर कंप्लेंट्स को लेकर FIR दर्ज करना नामुमकिन है। पुलिस स्टेशन में जो जाते हैं कंप्लेनेंट्स, उनके कंप्लेंट्स भी लेने में दिक्कत हो रही है और किसी को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है और उसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए, स्पेशल हार्डवेयर चाहिए, तो ये सब पुलिस स्टेशन में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आज जोनल हमारे 7 जोनल ऑफिसेस हैं, 7 DCP हैं। सो जोनल लेवल पर
ZCCs को स्टार्ट किया गया है। ये ZCCs के द्वारा, इसके ज़रिए जो पब्लिक में साइबर क्राइम का कंप्लेंट होता है, जो पब्लिक को देना होता है 25,000 के नीचे या जो भी कंप्लेंट उनके पास है, वो दर्ज करने के लिए अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो अब से उनको ठुकरा के वापस भेजा नहीं जाएगा। पुलिस पिटीशन रिसीव करके उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। 25,000 से नीचे लोकल पुलिस स्टेशन के लेवल पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगी। 25,000 से लेके 1 लाख तक जो फ्रॉड है उसको जोनल साइबर क्राइम सेल के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो सामग्री की ज़रूरत है वो सबको हमने जोनल ऑफिसेस में प्रोक्योर करके दिया है। और जो स्टाफ ज़रूरी है, एक जोन में एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर इंचार्ज रहेगा और एक SI, 5 कांस्टेबल और 2 होमगार्ड्स का फोर्स ये ZCC में दिया गया है। तो वो ये ZCC पूरा इन्वेस्टिगेशन टेकअप करके, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है, ये इसका इन्वेस्टिगेशन जो जिस तरीके से करना है वो पूरा ट्रेनिंग उनको दिया गया है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट, इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट करके वो पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज वहीं होगा पुलिस स्टेशन में, और पूरे इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स उनको दिया जाएगा। फिर चार्जशीट वहीं पर पुलिस स्टेशन में डाला जाएगा कोर्ट में, और जो अरेस्ट और रिमांड का कार्यक्रम है वो भी पुलिस स्टेशन के ज़रिए ही होगा। तो 1 लाख के ऊपर जो केसेस हैं, फ्रॉड्स हैं, वो सब सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन जो अब जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सोशल मीडिया के केसेस बहुत आ रहे हैं आजकल, तो जब अननोन अक्यूज्ड है तो वो सीधा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उसका केस रजिस्टर होगा। अगर नोन अक्यूज्ड है तो ZCC के ज़रिए ये इसका इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया जाएगा और अक्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट करना, रिमांड करना, ये सब जोनल लेवल पे और पुलिस स्टेशन लेवल पे होगा। तो ये सब ZCCs को हम क्यों शुरू किए, ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, आपको समझना चाहिए कि आजकल साइबर क्राइम की संख्या जो है बहुत बढ़ गई है। पिछले 10 साल में 350 से लेके अभी 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया है साइबर क्राइम। और ये साल अभी तक NCRP पोर्टल में करीब करीब मई महीना ख़त्म होने आ रहा है, 15,000 तक पिटीशंस अब तक दर्ज हो चुके हैं। तो इसका मतलब साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और उसको टैकल करने के लिए हमको और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और उसमें ही ये एक भाग है कि हम ZCCs को यहाँ पर आज इनॉग्रेट कर रहे हैं। इससे पब्लिक को बहुत सुविधा होगी। अब उनको नकारा नहीं जाएगा, उनको ठुकराया नहीं जाएगा, उनको पुलिस स्टेशन में अब से पिटीशन लेकर उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उनको जो भी हम फैसिलिटी दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, अगर अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं और रिकवरी कर सकते हैं, वो भी हम इस ZCCs के द्वारा कर पाएंगे। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या क़र्ज़ के रकम के तनाज़े के मामले में पेश आया। मक़तूल की शनाख्त साई कार्तिक के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि साई कार्तिक ने अपने दोस्त सिद्धार्थ रेड्डी से 8 लाख रुपए क़र्ज़ लिया था। रकम वापस ना करने पर साई कार्तिक ने दोस्त को धमकाना शुरू कर दिया था। इसी रकम को लेकर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस दौरान सिद्धार्थ रेड्डी ने साई कार्तिक पर हमला कर दिया। इस हमले में साई कार्तिक की मौत हो गई। यकम जून बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे धरना चौक हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़रिए एहतमाम वक्फ़ बिल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया जा रहा है।
इस सिलसिले में मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने अवाम से गुजारिश की है कि वह बड़ी तादाद में इस एहतजाज में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं ताकि मरकज़ी हुकूमत पर इस बिल को वापस लेने के लिए दबाव डाला जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरोज़े 1 जून इतवार के दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तो धरना चौक के ऊपर जो एहतजाजी जलसा मुंतखब किया गया है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर साहब की ताउन से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ताउन से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारकुनों की ताउन से, सरगर्म कारकुनों की ताउन से पिछले जितने मरतबा भी मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के जो भी प्रोग्राम हुए अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर असर तमाम इलाक़ों के अंदर बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए हैं। इस मरतबा भी जो प्रोग्राम हमको दिया गया है, इस प्रोग्राम के अंदर सदर साहब का खुसूसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खुसूसी दिलचस्पी इसके अंदर हम तमाम लोगों की है और आपकी हमारी भी तमाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि वक्त की हिफाजत करना, आइन की हिफाजत करना हमारा फरीज़ा है। लिहाजा हम ये वक्त की हिफाजत नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में आने वाले हमारे नस्लें हमको माफ़ नहीं करेंगी। बराए मेहरबानी हमारे तमाम काम बरस के 12 महीने चलते रहते हैं, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाकर भी जो है हमारे वक्त की हिफाजत अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा फरीज़ा है। तो बराए मेहरबानी आप तमाम हजरात अपने फरीज़े को बहैसियत उम्मत मुसलमान के होते हुए आप तमाम लोग धरना चौक के अंदर बड़ी तादाद में शिरकत कर इस धरना प्रोग्राम को आप कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान मोहम्मद खान, जॉइंट कन्वीनर, जॉइंट एक्शन कमेटी ने तमाम अहले तेलंगाना और उम्मत मुस्लिमा के फ़िक्रमंद अफराद से अपील की है कि वो 31 मई को इंदिरा पार्क धरना चौक पर होने वाले तेलंगाना मार्च में भरपूर शिरकत करें। ये मार्च वक्फ के ख़िलाफ़ बनाए गए सियाह क़ानून के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मत को इस सियाह क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इस मार्च में अपनी शिरकत से शहादत देनी चाहिए कि हम इसके मुखालिफ हैं। उस्मान मोहम्मद खान ने वाज़ेह किया कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर यकीन ना करें। इजाज़तनामा हासिल हो चुका है और तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो उम्मत के हक़ में खड़े होंगे अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। उम्मत के लिए खड़ेंगे, अल्लाह सुब्हानो ताला उनको बेशक अपनी रहमतों से नवाजेगा। मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं, किसी भी अफवाहों पे भी आप यकीन मत करिए कि परमिशन कैंसिल हो गया है, ऐसा हो गया है, फलां हो गया है। कोई चीज नहीं, परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है, हर चीज के इंतजामात हो गए हैं और बस अपनी शहादत देना है। हमको उस मैदान में आना है धरना चौक के पास। जिस तरीके से हम मिलियन मार्च में अपनी शिनाख्त बचाने के लिए, एनआरसी सीए के लिए आए थे, अब शरीयत बचाने के लिए, वक्फ के जायदादों को बचाने के लिए, मसाजिदों को बचाने के लिए, मदरसों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, कब्रस्तानों को बचाने के लिए, ईदगाहों को बचाने के लिए, इमाम बाड़ों को बचाने के लिए, आशुर खानों को बचाने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, कुछ छोड़ के जाने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हमको इसके लिए आवाज उठाना है। जिस तरीके से हम रुआब से बोलते हैं कि हमारे आबो अजदाद ने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी जानों को, अपने मालों को कुर्बान किया था और इस मुल्क के लिए आजादी हासिल करी थी, फिर एक बार हमको उसी तरीके से इस बिल को रोल बैक करे। जब तक रोडों पर निकलना है, धरने देना है, प्रोटेस्ट करना है, ताकि ये बिल वापस हो। जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने इसको वापस कराया था, जो किसानों का बिल था, उसी तरीके से हमको निकलना पड़ेगा। हमको किसी साजिशों में नहीं आना है, किसी के बातों में नहीं आना है, किसी चीज में हमको आना नहीं है। बस हमको इस मुल्क की, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते हुए, इस मुल्क के आइन को बचाते हुए, इस मुल्क में जो हमारे साथ आइन से खेला जा रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके लिए हमको खड़ना है और इस मुल्क का आइन हमको इजाजत देता है। तमाम सेकुलर माइंडेड लोग इस धरने में जरूर शिरकत करिए और इसको कामयाब करिए। मैं फिर एक बार आपको बोलूंगा, 31 मई 2025 धरना चौक इंदिरा पार्क पर तेलंगाना मार्च होगा ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।
हैदराबाद के नौजवान आलिम दीन मोहम्मद इकरामुद्दीन कान करतवी इमाम व ख़तीब मस्जिद गफ़ारिया व उस्ताद अलीफ मेस्को स्कूल मलकपेट ने आज अपने एक साथी हाफिज़ वसीम अशरफ़ी के हमरा सफ़र मुंबई के दौरान शहर के करीब वाक़े नीरल ज़िले रायगढ़ में हिंदुस्तान के मारूफ व मुतहरिक आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के ज़ेर निगरानी दीनी व असरी उलूम के साथ चलने वाले मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों व खानख़ाह का तफसीली मुशाहिदा किया। इस मौके पर मौलाना के दामाद व डिप्टी डायरेक्टर मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन नफीसी, मुफ्ती मोहम्मद इकराम करनूली और मुफ्ती अबू बकर ने तमाम इदारों व मुख्तलिफ़ शोबेजात का तारुफ़ करवाया। वाज़ेह है कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की जानिब से क़ाइम इन मुख्तलिफ़ इदारों में तलबा को हाफिज़ आलिम दीन मुफ्ती के साथ साथ ग्रेजुएशन तक की तालीम फ़राहम की जाती है और इनके लिए तालीम के साथ जिस्मानी व ज़हनी वर्जिश के लिए भी मुख्तलिफ़ एग्जीक्यूटर्स का भी माक़ूल इंतज़ाम है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद के 2 मुलाजिमीन अल्ताफ़ और सुरेश सुबुकदोश हुए, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद की जानिब से इन्हें तहनीत पेश की गई। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएट सदर व TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार और सेक्रेटरी के अलावा दीगर मुलाजिमीन ने सुरेश और अल्ताफ़ को तहनीत पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। कितने राफेल तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए या मार गिराए गए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का वज़ीर आज़म से सवाल। एक मोटरसाइकिल सवार को अचानक पड़े दौरे, जहां सीतक्का ने इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए फौरी अपनी गाड़ी रोककर मुतासरा शख्स की मदद। गौरवली प्रोजेक्ट के जरिए इस पूरे इलाके को ज़रई पैदावार से सरसब्ज़ शादाब बनाया जाएगा, वज़ीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं बल्कि मैंने BRS को बचाने के लिए ख़त लिखा था, के कविता का बयान। GHMC कमिश्नर और वाटर वर्क्स के MD ने आज रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा याकुतपुरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का किया मुआयना। हैदराबाद में साइबर क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने शहर के 7 जोन्स में साइबर सेल्स का किया इफ्तिताह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से 1 जून को दोपहर 2 बजे तक 5 बजे धरना चौक पर वक्फ बिल के खिलाफ मुनक़िद किया जा रहा है एहतजाज। शिरकत की आवाम से की गई अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रेज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलाहिदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू